Good morning, students. Today we are discussing the subject health education, in which we are doing the communicable diseases. तो उसके अंदर हम अब करने लगे हैं ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीजेस। ऑर्थोपॉड डिजीजेस करने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑर्थोपॉड डिजीजेस होते क्या है। जो भी पीपल के अंदर, लोगों के अंदर इन्फेक्शन या आपके जो भी डिजीज कॉज होती है, ये आपकी जो ऑर्थोपॉड डिजीज होती है ये कॉज होती है ग्रुप ऑफ वायरसेस, ठीक है। और ये जो वायरसेस हैं, ग्रुप ऑफ वायरसेस, ये आते कहाँ से आपके, ये होते हैं आपके मतलब किसी इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स, वो अगर बाइट करते हैं किसी पर्सन को, वो अगर बाइट करते हैं तो वहाँ से जो डिजीज होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीज। जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डिजीज करेंगे मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो अकर थ्रू मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द प्रोटोजोअल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटोज। कौन सी? एनोफिलीज mosquitoes. It is the most important of the parasitic diseases of human beings, affecting approximately 200 million people and causing over 1 million deaths each year. Malaria today is a major burden on the tropical communities and a danger to the travelers. Causative organism, इसमें आपकी 4 species हैं of the genus Plasmodium infect humans। वो आपकी Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum। सबसे पहली आपकी Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, उसके बाद आपकी प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum। ये आपकी 4 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन के अंदर कॉज होती है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट करेंगे कि जो मलेरिया पैरासाइट है अंडरगो 2 साइकिल्स ऑफ डेवलपमेंट। 2 साइकिल्स के अंदर ये अपनी डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहला होता है ह्यूमन साइकिल जो कि एसेक्सुअल साइकिल रहता है, और सेकंड होता है मॉस्किटो साइकिल जो कि सेक्सुअल साइकिल होता है। सबसे पहला हम एसेक्सुअल साइकिल करेंगे जो कि ह्यूमन साइकिल आपका। इट बिगिंस विद व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन एंड इंजेक्ट्स sporozoites which pass through the following 4 phases। सबसे पहले आपकी hepatic phase। The sporozoites disappear within 60 minutes from peripheral circulation। Many of them are destroyed by phagocytes, but some reach the liver cells। After development, they become hepatic, which ultimately burst to release a shower of merozoites। सेकेंड होती है आपकी एरिथ्रोसाइटिक फेज। मेनी ऑफ द मेरोसाइट्स आर क्विकली डिस्ट्रॉयड बट अ सिग्निफिकेंट नंबर अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन आरबीसीज। द मेरोzoites then penetrate the RBCs and pass through the stages of tropozoites and scytosons। The erythrocytic phase ends with the liberation of मेरोzoites which infect fresh red blood cells। अब erythrocytic phase है तो हम रेड ब्लड सेल्स की ही बात चलेगी यहाँ पे। The cycle is repeated over and over again। तो ये रिपीट होता रहता है again and again। The duration of erythrocytic phase is constant for each species of malaria parasite। Third is gametogamy। In all species of malaria, some erythrocytic forms do not divide but become male and female gametocytes। These are sexual forms of the parasites which are infected to mosquitoes।
सेकंड होती है हमारे पास सेक्सुअल साइकिल, इसमें कि द मॉस्किटो साइकिल बिगिंस व्हेन गमीटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय द वेक्टर मॉस्किटो व्हेन फीडिंग ऑन एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो male gametocytes develop into microgametes and the female gametocytes develop into macrogametes. Microgametes are attracted towards the female and one of which causes fertilization of the female gamete. The resulting zygote is at the first motionless body, but within 18 to 24 hours it becomes motile. This is known as okinete, which penetrates the stomach wall of the stomach mosquito and develops into an oocyst on the outer surface of the stomach. The oocyst grows rapidly and produces numerous sporozoites. When mature, the oocyst bursts and liberates sporozoites into the body cavity of the mosquito. Many of the infected to man, depending upon the favorable conditions of temperature and humidity. It takes 10 to 20 days for the development of parasite from gametocytes to sporocytes. अब इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है आपका? ये सबसे पहले वेक्टर ट्रांसमिशन होती है। तो मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट करता है आपका बाइट ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो से, ठीक है। तो जो मॉस्किटो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जब तक आपका जो स्पोरोजोइट्स है वो प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स में नहीं होगा। सेकेंड होती है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो आपके डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और प्लाज्मा से। किसी आप पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, उनके इंजेक्शन से उनके ब्लड से आपको डायरेक्टली वो हो जाता है। थर्ड होता है आपका कंजेंशियल। कंजेंशियल इन्फेक्शन जो है वो आपकी न्यूबॉर्न को होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर में ऑल्सो अकर, बट इट इज कंपैरेटिवली रेयर। इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका रहता है इट वेरीज बिटवीन 9 to 30 डेज। 9 to 30 डेज तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बीइंग शॉर्टेस्ट द प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम एंड लॉन्गेस्ट इन प्लाज्मोडियम मलेरिया इन्फेक्शन। इसके जो आपके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं वो आपके 3 सक्सेसिव स्टेजेस में अंदर कंप्राइज करते हैं। सबसे पहले कोल्ड स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ फीवर with the rigors and chills and sensation of extreme cold. The patient desires to be covered with blankets. This stage lasts for 15 minutes to 1 hour. उसके बाद hot stage. The temperature rises up to 106 degree Fahrenheit. This is intense headache. This stage lasts from 2 to 6 hours. Third, sweating stage. Fever decreases with profuse sweating. This stage lasts for 2 to 4 hours. अब प्रिवेंशन हम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिपेलेंट्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बेड नेट्स एंड स्क्रीनिंग ऑफ हाउसेस। उसके बाद एंटी लार्वल मेजर। अगर लार्वल का कोई मेजर होता है वो कैसे लिया जा सकता है? इंटरमिटेंट ड्राइंग ऑफ वाटर कंटेनर्स एंड यूजिंग लार्विसाइड्स लाइक केरोसिन एंड गैम्बुशिया फिश। इट ईट्स मॉस्किटो लार्वे। उसके बाद होती है एंटी एडल्ट by spraying insecticides like DDT, BHC, Deleterin and Flit। ये आपकी एंटी मॉस्किटो आपकी काम करेंगे। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर। इट इंक्लूड्स कीमोप्रोफाइलेक्सिस और कीमोथेरेपी। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिकमेंडेड इन हाईली एंडेमिक एरियाज। क्लोरोक्विन इसके लिए यूज की जाती है आपकी, जो कि 5 mg per kg per week remains the drug of choice for prophylaxis। ट्रीटमेंट में हम अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जो यूज करते हैं क्लोरोक्विन 10 mg per kg फॉलोड बाय 5 mg per kg एट 6, 24 and 48 आवर्स। और जो अदर ड्रग्स हम इसमें दी जाती हैं वो क्लोरोक्विन इंटॉलरेंस केस में वो होती है आपकी प्रीमाक्विन, pyrimethamine एंड सल्फाटॉक्सिन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट मलेरिया। तो ये हमारे मलेरिया के लिए। सेकेंड हमारे पास रहती है प्लाग। Plague is a primarily zoonotic disease or zoonosis, that is, infection is transmitted to man by infected
Plague has been a recurrent scourge of man from ancient times and earned the name of the Black Death. Causative organism इसमें जो होता है आपका Yersinia pestis, which is a small gram-negative bacillus formerly called as Ascaris pestis. इसमें आपकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो fleas feed on rats. जो fleas जो feed करती है rats के ऊपर, the infected rats die and then the fleas leaves the rat. When healthy rats run away and fleas starve, so they bite human beings and infect them. The bacilli which are excreted in the feces of fleas or are regulated may enter directly through cuts or abrasions. But pneumonic type of plague is transmitted by droplet infection. इसमें जो आपकी incubation period रहती है वो 3 to 6 days होती है, but less in pneumonic plague. तो टाइप्स ऑफ प्लाग आपकी वो 3 टाइप्स में दी गई है. एक होती है आपकी ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग. उसके बाद आपकी प्रिवेंशन और कंट्रोल में जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेते हैं हम. प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ब्यूबोनिक एंड सेप्टिक प्लाग लार्जली डिपेंड्स ऑन प्रिवेंटिंग बाइटिंग बाय फ्लीज कैरिंग प्लाग मटेरियल. Rats should be controlled. Powders containing 1.5% dilithium or 2% aldrin applied to floors and blown into rat holes kills all the fleas and remains active for 9 to 12 minutes. Early diagnosis, notification, isolation and disinfection of excretions like sputum discharges help in the prevention and control of plague. Attendants must wear gowns, mask और gloves. जो भी आपको पेशेंट से मिलने जा रहा है, उसके पास जा रहा है, उसको गाउन्स, मास्क और ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे. सेकेंड आपकी कीमो प्रोफाइलेक्सिस. कॉन्टैक्ट्स एंड अदर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय टेट्रासाइक्लिन 2 ग्राम डेली एंड सल्फोनामाइड सच एज सल्फा डाइमिडीन 3 to 6 ग्राम डेली फॉर अ वीक. वैक्सीनेशन इसमें हम देते हैं फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन. देयर आर 2 वैक्सीन्स, द किल्ड वैक्सीन एंड अटेंचुएटेड वैक्सीन. किल्ड वैक्सीन इज गिवन इन 2 or 3 doses but later is in single dose. Booster dose are required after 3 to 6 months, but both these vaccines don't protect against pneumonic plague. ये आपकी pneumonic जो plague है उसके लिए काम नहीं करती है जो भी आपकी ये vaccines वगैरह दी जाती हैं. तो ये हमारे ऑर्थोपॉड डिजीजेस में हमने मलेरिया और plague के बारे में. थैंक यू.